السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلام حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ خام تیل کی مارکیٹ میں مسلسل مضبوطی کے درمیان آخری تجارتی سیشن میں کمی دیکھی گئی ہے، تاہم ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں مسلسل مستحکم ہیں۔ آج منگل 18 جنوری 2022 کو بھی تیل کی قیمتوں میں کوئی نظر ثانی نہیں کی گئی ہے۔ 3 نومبر 2021 سے ملک میں تیل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جبکہ ہندوستانی شہریوں کا تاثر ہے کہ 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر حکومت پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں تبدیلی لائے گی، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، آپ حضرات اس موضوع پر اپنے خیالات ضرور کمنٹس کے ذریعے پیش کیجیے گا۔ شمالی ہندوستان کی پہاڑی ریاستوں میں برف باری کی وجہ سے دہلی، اتر پردیش، بہار جیسی ریاستوں میں سردی کا زور جاری ہے۔ منگل کی صبح محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ دارالحکومت دہلی میں اگلے 2 دنوں تک سردی سے کوئی راحت نہیں ملے گی، ایسے ہی سردی لگتی رہے گی، تاہم اس کے بعد درجہ حرارت میں اضافہ یقینی طور پر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلے 24 گھنٹوں میں تمل ناڈو، پڈوچیری، آندھرا پردیش وغیرہ ریاستوں میں کچھ مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کے مطابق کیرالہ میں اگلے 2 دنوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ ہندوستان میں لگاتار 15-16 دنوں تک کووڈ کی رفتار کے بعد اب ملک میں کورونا کی تیسری لہر تھمتی نظر آ رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 2,38,018 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ مسلسل تیسرا دن ہے جب کورونا کیسز میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,57,421 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وہیں ملک میں اومیکرون کے کیسز بڑھ کر 8,891 ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں اومیکرون کے کیسز میں 8.5% اضافہ ہوا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش میں بی جے پی کو ہرانے اور کسانوں کے لیے خیرخواہ حکومت بنانے کے عزم کے ساتھ کسان لیڈر تیجندر سنگھ ورک کے ساتھ اناج ہاتھ میں لے کر قسم کھائی ہے۔ تیجندر سنگھ، جو 17 جنوری کو سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، لکھیم پور کھیری سانحے میں گاڑی کی ٹکر میں زخمی ہونے والے کسانوں میں شامل ہیں۔ اکھلیش یادو نے تیجندر سنگھ کی موجودگی میں اناج ہاتھ میں لے کر عہد کیا کہ وہ کسانوں پر ظلم کرنے والی حکومت کو ہرائیں گے اور اپنی حکومت بننے پر وہ تمام مقدمات واپس لیں گے جو زرعی قوانین کی منسوخی کے لیے احتجاج کے دوران کسانوں کے خلاف درج کیے گئے تھے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لفظوں اور الزامات اور جوابی الزامات کی جنگ بھی تیز ہو گئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں اس پارٹی سے چھٹکارا پانا 1947 کے بعد سے بڑی آزادی ہوگی، کیونکہ بی جے پی ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ محبوبہ مفتی نے پی ڈی پی کے آدیواسی یووا سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جیسے جیسے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات قریب آ رہے ہیں، بی جے پی اورنگزیب اور بابر کو یاد کر رہی ہے۔ آج ہمیں بی جے پی سے چھٹکارا پانے کا موقع ملا ہے۔ 1947 کے بعد ہندوستان میں یہ ایک بڑی آزادی ہوگی، کیونکہ بی جے پی ملک کو تقسیم کرنے تلی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے گرو روی داس جینتی کے پیش نظر ریاست میں 14 فروری کے بجائے 20 فروری کو اسمبلی انتخابات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے چیف منسٹر چرنجیت سنگھ چنی، بی جے پی، اس کی اتحادی جماعتیں، بی ایس پی اور دیگر تنظیموں نے رائے دہی کی تاریخ ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی، کیونکہ گرو روی داس کے لاکھوں پیروز 16 فروری کو ان کی جینتی منانے کے لیے اتر پردیش کے وارانسی کا سفر کرتے ہیں۔ ہندو مہاسبھا کے قومی سیکرٹری اور نرنجنی اکھاڑی کے مہامنڈلیشور پوجا شکن پانڈے نے اعلان کیا ہے کہ علی گڑھ میں 22 اور 23 جنوری کو کسی بھی قیمت پر دھرم سنسد منعقد کی جائے گی۔ جمیعت علماء ہند اور دیگر نے مجوزہ دھرم سنسد کی مخالفت کی ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے دہلی اور ہریدوار کی دھرم سنسدوں کے خلاف درخواستوں کا نوٹ لیتے ہوئے نوٹسیں جاری کی تھی اور درخواست گزاروں سے کہا تھا کہ وہ علی گڑھ میں مجوزہ دھرم سنسد کو روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ سے رجوع ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہنر اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہندوستان کی طاقت کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے بحران کے وقت دنیا کو جمہوریت کے تئیں غیر متزلزل یقین، نئی ٹیکنالوجی اور ہنر کی شکل میں امید کا تحفہ دیا ہے۔ مودی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سوئٹزرلینڈ کے ڈیووس میں منعقدہ ورلڈ اکنامک فورم کانفرنس میں عالمی معیشت کی صورتحال پر خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے تبدیلی، مہنگائی، صحت اور کرپٹو کرنسی جیسے مسائل پر تمام ممالک کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کثیر الجہتی عالمی اداروں کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرنے کے لیے اصلاحات کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان عالمی سپلائی چین کو قابل بھروسہ بنانے میں تعاون کے لیے پرعزم ہے، جس میں اس وقت خلل پڑا ہے۔ انہوں نے طرز زندگی کو تبدیل کرنے اور ری سائیکلنگ پر مبنی معیشت بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی نے یہ سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ مودی حکومت چین کی دراندازی کے تعلق سے جھوٹ بول رہی ہے اور وزیراعظم نریندر مودی میں حوصلے کا فقدان ہے۔ سینئر راجیہ سبھا رکن نے
ETV को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिंदुस्तान और चीन सरहदी तनाज़ात के बारे में मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है और बुज़दिली का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने इस मामले से निपटने में नाअहली के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पर भी तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि ये दावे झूठे हैं कि चीन से कोई भी हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि या तो सरहद पर तैनात सिपाही झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत की सोच है कि इस तरह के झूठ को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे इसकी वजह कोई भी हो। बीजेपी के सीनियर लीडर स्वामी ने पार्लियामेंट में इस ताल्लुक से सवाल करना चाहा। उन्होंने कहा कि मेरा यही सवाल था कि आया चीन हमारी सरहद में दाखिल हुआ या नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए हुकूमत ने यह तासुर दे दिया है कि चीन ने दरअंदाजी की है, वरना आप ये क्यों कहते कि यह मामला कौमी सलामती का है। उन्होंने ये भी ख्याल जाहिर किया कि वज़ीर-ए-आज़म चीन के साथ सरहदी तनाज़ात के बारे में बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं और इन्हें खौफ है कि तारीख 1962 की हिंद चीन जंग की तरह दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कमज़ोर नहीं हैं बल्कि हम खौफजदा हैं। मीडिया भी इम्कानी खतरात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 से मुतालिक वर्किंग ग्रुप के सदरनशीन डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा कि हिंदुस्तान में मार्च में कोविड-19 के खिलाफ 12 से 14 साल के बच्चों को टीका दिया जा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 15 से 18 साल की उम्र के 7 करोड़ 40 लाख से जायद नौजवानों में जायदस 3 करोड़ 45 लाख वैक्सीन का पहला टीका दे दिया गया है और 28 दिनों में इन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा। कोविड ग्रुप के सदरनशीन ने कहा कि नौजवान सरगर्मी से टीका अंदाजी के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों का अहाता करने के बाद हुकूमत मार्च में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीका अंदाजी मुहिम शुरू करने के बारे में फैसला करेगी। एक अंदाजे के मुताबिक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों की आबादी 7.5 करोड़ पर मुश्तमिल है। मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल-हुकूमत अबू धाबी में यमन के हवसियों के ड्रोन हमले से 2 हिंदुस्तानी और 1 पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गए और 6 दीगर जख्मी हुए हैं, जबकि 3 पेट्रोलियम टैंकर्स जद में आ गए। UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने बताया कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए तामीराती इलाके में आग लग गई। न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के करीब मुसाफा इलाके में आग लगी, जिसके नतीजे में 3 पेट्रोलियम टैंकर्स में धमाका हुआ। शुरुआती तहकीकात से इशारा मिला है कि इम्कानी ड्रोन्स इन 2 इलाकों में गिरे। आग को काबू में कर लिया गया है। अबू धाबी पुलिस ने तौसीक की कि 2 हिंदुस्तानी शहरी और 1 पाकिस्तानी शहरी हलाक हुआ है। मजीद 6 अफराद जख्मी हुए, लेकिन महलूकीन और जख्मियों की शिनाख्त नहीं की गई है। UAE में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने कहा कि वो मजीद तफसीलात के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ रब्त में है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने फौरी तौर पर इस हमले के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन यमन के हवसियों ने दावा किया है कि उन्होंने UAE को निशाना बनाया है। अमेरिका में इंतखाबात के मौके पर सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के स्टाफ की मुस्लिम सरबराह हुमा आबिदीन ने कहा है कि 2016 में इलेक्शन के दिनों में बाज़ सियासतदानों की तरफ से मुसलमानों को खौफनाक किरदार के तौर पर पेश किया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलरी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त का शिकार हो गई थी। हुमा आबिदीन ने बताया कि उन्होंने 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के एक अहदेदार की जानिब से इन मुतालबात का भी तहम्मुल से सामना किया, जिनमें कहा गया था कि तहकीकात की जाए क्योंकि वो और उनके ख़ानदान वाले मुसलमान हैं, जबकि इस मोतसबाना तर्ज अमल ने 2016 के इंतखाबात के मौके पर बहुत शिद्दत इख्तियार की। हुमा की हाल ही में अमेरिकी सियासत में अपने तजुर्बे और सऊदी अरब में अपना बचपन गुजारने से मुतालिक एक किताब शाया हुई है। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार आलमी पॉलिसी साजों के इंटरव्यूज़ की सीरीज़ फ्रैंकली स्पीकिंग में किया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस और ओमाइक्रॉन की वबा के अलावा दूसरे मौज़ूआत का जायजा लेने के लिए पीर को रियासती काबीना का तकरीबन 9 घंटों तक इजलास जारी रहा था। हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का कोई फैसला नहीं किया है। इस ताल्लुक से दोपहर से ही क़यास आराइयाँ गश्त कर रही थी कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत नाइट कर्फ्यू नाफिज कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई सरकारी ऐलान सामने नहीं आया। अवाम को मशवरा दिया गया कि वो किसी भी मुकाम पर हुजूम की शक्ल में जमा ना हो और हर शख्स अपने आप को महफूज रखें। दोपहर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में रियासत में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल और इससे निपटने की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक काबीनी इजलास में शरीक वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने रियासत में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और इलाज की सहूलतों से काबीनी रुख़ा को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि कोरोना की सूरत हाल काबू में है और महकमा सेहत किसी भी सूरत हाल से निपटने पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक कोरोना वैक्सीन के 5 करोड़ डोज दिए गए। मजीद अहल अफराद को कोरोना के वैक्सीन दिए जाएंगे। मेंटल हॉस्पिटल एरागड्डे में ज़ेर इलाज 57 मरीजों को कोरोना की तौसीक़ हुई है। एरागड्डा के दवाखाने में एक शख्स को कोरोना के बाद इंतज़ामिया ने तमाम मरीजों का मुआयना किया था, जिस पर तौसीक़ हुई कि दवाखाने में बेशतर ज़हनी मरीज़ कोरोना से मुतासिर हैं। ज़राए के मुताबिक अभी कई मरीजों की रिपोर्ट मौसूल होना बाकी है और महकमा सेहत से मरीजों के 60 डॉक्टर्स और तिब्बी व गैर तिब्बी अमले के भी मुआयने का फैसला किया गया और इनके नमूने भी हासिल किए जा रहे हैं। दोनों शहरों के सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स के कोरोना मुतासिर होने की इत्तलात के दौरान ज़हनी माज़ूरीन को कोरोना की तौसीक़ के बाद महकमा सेहत के अहदेदारों में हलचल पैदा हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत की तमाम अदालतों को 18 जनवरी से 4 फरवरी तक वर्चुअल तरीके से चलाने का फैसला किया है।
रजिस्ट्रार जनरल के अहकामात में कहा गया है कि तेलंगाना में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए फैसला किया गया कि तमाम अदालतों में ऑनलाइन खिदमत अंजाम दी जाएगी और 4 फरवरी तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। अहकामात में वाज़ेह किया गया है कि अदालतों को कोरोना से पाक बनाने और अदालतों को पहुंचने वालों को कोरोना से महफूज रखने जारी करदा रहनुमा खतूत पर फौरी अमल किया जाएगा। सरबराह टीआरएस व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कौमी सतह पर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मुतबादिल तीसरा मिहाज तैयार करने के मामले में तौक़े के मुताबिक इलाक़ाई जमातों से ताउन हासिल नहीं हो रहा है। तीसरे मिहाज की तैयारियों के सिलसिले में हाल ही में बिहार के कायद अपोजिशन आरजेडी के नौजवान कायद तेजस्वी यादव को केसीआर ने खुद हैदराबाद को तलब करके बातचीत की, मगर इनकी जानिब से कोई मुस्बित रद्दअमल का इजहार न होने का इल्म हुआ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेजस्वी यादव के लिए खुसूसी चार्टर तैयारे को बिहार रवाना करते हुए इन्हें तलब किया था। प्रगति भवन में आरजेडी के वफ़द ने 2 घंटों तक मुल्क की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अगर इलाकाई जमातें मुत्तहिद हो जाती हैं तो बीजेपी को शिकस्त देना नामुमकिन नहीं होने का केसीआर ने तासुर दिया है। जनूबी हिंद की रियासतों को बशमूल महाराष्ट्र में दूसरी जमातों की जानिब से बीजेपी को दी गई शिकस्त का हवाला भी दिया गया। मौसूल ज़राए से पता चला है कि तेजस्वी यादव ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को बताया कि आरजेडी के कदीम अरसे से कांग्रेस के साथ बेहतर ताल्लुकात है। ज़राए से पता चला है कि वज़ीर आला तेलंगाना की जानिब से प्रगति भवन पहुंचने की दावत वसूल होने के बाद तेजस्वी यादव ने फौरी अपने वालिद आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव से बातचीत की। लालू प्रसाद यादव ने अपने फर्जंद को बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात करने पर कौमी सतह पर आरजेडी की सियासी अहमियत में भी इजाफा होगा, मगर केसीआर से कोई भी वादा या तयक़ुन ना देने पर जोर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र आरटीपीसीआर माइनों की तादाद में इजाफा करें। रियासत में कोविड की सूरत हाल पर अदालत ने समाअत की और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि रोज़ाना रियासत में 1 लाख आरटीपीसीआर मुआयने किए जाएँ। आरटीपीसीआर रैपिड मुआयने की तफसीलात भी अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन तुकाराम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जोर देते हुए कहा कि समाजी फासला मास्क के क़वायद पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मजीद चौकसी अख्तियार करने की भी अदालत ने हिदायत दी। रियासत तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2447 नए मामला सामने आने के बाद ताहाल इस वायरस से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 7,11,656 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान मजीद 2,295 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इस तरह अब तक मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 6,85,399 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जीएचएमसी के हदूद में 1,112 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में आज शिकायत दर्ज करवाई गई। तफसीलात के मुताबिक अकबरबाग के रहने वाले खलील अहमद ने अपने फेसबुक पेज पर आरएसएस सरबराह मोहन भगवत और मुलायम सिंह यादव के दरमियान मुलाकात की गुज़श्ता साल की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए मुलायम सिंह यादव की जगह सदर मजलिस की तस्वीर को जोड़कर इसे अपलोड कर दिया। इसी तरह यह फर्जी और गुमराहकुन तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स फहाद बिन अब्दाद, अब्दुल सलाम शाहिद, मिनाजुद्दीन एसएम अबरार, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और दूसरों ने इस सिलसिले में चन्नानगुट्टा, चादरघाट, मलकपेट और दीगर पुलिस स्टेशनों के अलावा साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने खलील अहमद के खिलाफ ताज़रात हिंद के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। इस दौरान खलील अहमद के पड़ोसियों ने भी इसके खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि खलील अहमद जो एडवोकेट है अपना ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से जाहिर करते हुए रुआब जमाने की कोशिश करता है। तेलुगु रियासतों में कई अहम शख्सियतें कोरोना का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामले में तेलुगु देशम के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्राबाबू नायडू हल्की अलामत के साथ कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए। मंगल की सुबह चंद्राबाबू नायडू ने ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी है। दूसरी तरफ कल तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी और चंद्राबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। नारा लोकेश ने भी ट्विटर पर इसकी इत्तला दी थी। उन्होंने कहा कि सेहतियाबी तक वो सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।